Greetings to all students and viewers. I welcome all of you to the second part of the letter writing. Today we'll discuss business letter. It is for the classes 9 to 12th. Business letter. It is consist of two letter, letter of placing order and letter for complaint. तो बिजनेस लेटर दो तरह का होता है, एक होता है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और दूसरा होता है लेटर फॉर कंप्लेंट, जहाँ पर वी रिसीव द कंप्लेंट, वी राइट द कंप्लेंट व्हेन एनी ऑर्डर इज़ प्लेस्ड। जब कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके बाद जो कंप्लेन उसमें होती है फॉर द डिफेक्टिव आइटम्स, फॉर द मिसप्लेस ऑफ आइटम्स, वी राइट द कंप्लेंट लेटर देयर. So let's know that what is letter of placing order. An order letter is the one that is written by the person or a company placing the request of purchase from another company. That's very simple. कि जो एक ऑर्डर लेटर होता है वो किसी पर्सन के थ्रू लिखा जाता है. इंडिविजुअली कोई पर्सन लिख सकता है उसे टू इन ऑर्डर टू परचेज समथिंग, कोई चीज़ खरीदने के लिए, या कोई कंपनी दूसरे कंपनी को जो है लेटर लिख सकती है इन ऑर्डर टू परचेज समथिंग. So now we are going to learn the format of the letter of placing an order, which is no different than any other format of formal letter that we have learned in a previous letter. But before that, we'll discuss the marking scheme of the letter of placing order. Now let's have a look over the marking scheme. Marking scheme for class 9th and 10th. The letter writing of placing an order, it does come for 8 marks, and for class 11th and 12th it does come for 6 marks. So look at first at the marking scheme for class 10th. Format, it has 1 mark. Format आपको मालूम है कि from the sender address to the last subscription, अगर पूरा एकदम सीरियल ऑर्डर में है यू विल गेट 1 मार्क ऑन द फॉर्मेट. दैट्स वेरी इजी. एंड द सेकेंड इज कंटेंट. कंटेंट हैज़ 4 मार्क्स एंड कंटेंट इज ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियाज, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज एंड स्किल ऑफ रीजनिंग. if you are writing, if you are presenting your views in a very creative way and you are using the polite language and there is a skill of reasoning, that you are writing the relevant points in a very impressive way, you will get 4 marks on content. That's why यहाँ पे जितने भी मार्क्स बाइफोकेट किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होल्ड करता है, और कंटेंट इसीलिए उसमें मार्क्स दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपके वर्ड्स देखे जाते हैं, वो चेक किए जाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट 3 मार्क्स एंड इट हैज़ द रेलिवेंसी एंड एक्यूरेसी, कि जो भी पैराग्राफ्स लिखे गए हैं वो एक दूसरे से कोहेरेंट हैं, वो कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से नहीं कनेक्टेड है, उसमें फ्लो है कि नहीं है, और जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेज हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं. इफ़ दीज ऑल द थिंग्स आर करेक्ट, so definitely you are going to get 3 marks. Now student, let's have a look on format. Format will first write the sender's address. Sender, a person who is writing the letter. It consists of 2 to 3 lines. In the first line we write the house number. Second, the name of a street. Third, name of city or district. Student, I had told you in letter to the editor कि जो sender address होता है और receiver address का जो name of city है, जो place name है, वो बिल्कुल same होना चाहिए. But here in writing a letter of order, एक जो letter of order है, जो placing order है, placing order letter है, उसमें हम यहाँ पर different address को लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो कोई भी चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन तो वो कहीं जो उसका रिसीवर हो सकता है वो किसी दूसरे सिटी से भी हो सकता है, तो वी कैन चेंज द प्लेस नेम हियर. द सेकेंड इज यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट द डेट. डेट आई हैव टोल्ड यू द 2 फॉर्मेट, 14 April 2020, April 14 2020. In this 2 way you can write the date. You don't have to write after 14, you don't have to write TH
and sometime if you're writing second, so you don't have to write nd. I have told you कि स्पोकन में जब हम कभी डेट को बताते हैं we tell in ordinal number, but while writing we don't mention it. Receiver address, you may write post or designation. सबसे पहले आप post या designation लिख सकते हैं. Then you have to write the name of a street. Then the third line, city or district's name. पोस्ट और डेजिग्नेशन, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप वहाँ लिख सकते हैं द प्रोप्राइटर, कभी कभी दिया गया होता है, कभी कभी नहीं भी दिया होता है. द सेल्स मैनेजर यू कैन राइट, एंड यू कैन राइट द मैनेजिंग डायरेक्टर. यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ टाइटल. sometime it is given in the question and sometime it is not given, so you have to produce yourself. आपको अपने आप से प्रोड्यूस करना होता है, अपने आप से क्रिएट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर ओन इमेजिनेशन. तो जैसे हाउस नंबर भी कभी कभी नहीं दिया गया होता है, बट टू राइट द ऑथेंटिक लेटर, एक ऑथेंटिक या एक जो इम्प्रेसिव लेटर लिखना है, वी कैन क्रिएट आवर ओन वे. वहाँ पे हम अपने तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हैं. डेट इज़ ऑल्सो नॉट यूजुअली मैंसनड, डेट भी मैंसन नहीं रहती है क्वेश्चन में, बट वी सपोज जिस दिन बोर्ड का पेपर होता है इंग्लिश का, हम वही डेट को वहाँ पे मेंशन कर देते हैं. और यहाँ पे प्लेसिंग एन ऑर्डर पे हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जिस दिन हम ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, तो अभी कंटेंट में जब हम वहाँ पे डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो वी जस्ट गिव अ ड्यू डेट, वहाँ पर हम एक ड्यू डेट देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, और फिर उसी डेट पे जो है हमें डिलीवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो वी राइट द फर्दर डेट, वहाँ पे जो आने वाली जो डेट्स हैं हम उसे वहाँ पर मेंशन करते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट डेट एंड रिसीवर एड्रेस. देन वी राइट द ओपनिंग सैल्यूटेशन. अभी यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट पहले लिखा गया है, बट वी मे राइट अकॉर्डिंग टू द 2020 फॉर्मेट, वी हैव टू राइट ओपनिंग सैल्यूटेशन फर्स्ट, और वहाँ पे हम लिख सकते हैं डियर सर और मैम, या सर और मैम. कुछ स्टूडेंट यहाँ पे MAM लिख देते हैं, वो क्या होता है, गलत होता है. वी शुड राइट MA''AM, वी शुड राइट मैम. देन यू हैव टू लीव अ लाइन, आपको एक लाइन का स्पेस देना है. देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है. इट शुड बी ब्रीफ एंड आई कैचिंग, ये ब्रीफ होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए. ओके, एंड आई विल एलोबरेट यू कि किस तरह के आप सब्जेक्ट को लिख सकते हैं. बॉडी ऑफ द लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड पर्पज ऑफ राइटिंग. द सेकेंड पैराग्राफ डिटेल ऑफ मैटर. द थर्ड पैराग्राफ योर ओपिनियन एंड कंक्लूजन. And in the fourth one we write after completing the 3 paragraphs, we write the closing salutation or complimentary close. We write thanking you, and in the subscription we write yours faithfully or truly, or we can also write sincerely, followed by the sender's name and designation. Student, while writing yours sincerely, we should know the person name. अगर हमें पर्सन का नेम मालूम है तभी हमें yours sincerely लिखना चाहिए. If we are not acquainted with the name of person, then we can write only your faithfully or truly. Means यहाँ पे अगर आपको रिसीवर का नेम मालूम है, जैसे आप जानते हैं कि प्रोप्राइटर कौन है, डियर अनुज, और प्रोप्राइटर का नाम आपको मालूम है, देन यू आर स्टार्टिंग, मीन्स इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं योर सिंसियरली. अगर आप नेम को नहीं जानते हैं, देन यू मे राइट योर फेथफुली और ट्रूली. सो दीज आर द 2 सैल्यूटेशन विच वी हैव टू राइट. नाउ अब हम लोग जो है जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ्स में क्या क्या सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ वाइज, कुछ आपको सेंटेंस के हिंट देते हैं, जिसको आप जान करके उसको अगर अपने लेटर में लिखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो आपकी लेटर के जो पैराग्राफ्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव होंगे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पैराग्राफ्स ऑफ द लेटर्स. सो स्टूडेंट, लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ. सम ऑफ द phrases आर गिवन हियर, लाइक द फर्स्ट line is given here, I am the dash.
So here you can write the post of a person, of a sender. You can write like a sport instructor, librarian, lab assistant. You can write I am the sports instructor of dash school. You have to write the name of the school here. And I would like to place an order for the following. You have to write the sports items for the following sports item, लाइक स्पोर्ट्स आइटम एंड एसेसरीज, कोई भी वहाँ पर आपको लिखना होगा। वहाँ पे जैसे आपने स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर लिखा है तो वहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम। अगर आप लाइब्रेरियन लिख रहे हैं तो लाइब्रेरियन में आपको क्या लिखना होगा कि फॉर द फॉलोइंग बुक्स। ओके, इफ़ यू राइटिंग लैब असिस्टेंट, अगर आप लैब असिस्टेंट हैं तो फॉर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स और इक्विपमेंट्स। ओके, यू मे राइट दिस वे। सो यू कैन बिगिन विद दिस लाइन। आप फर्स्ट पैराग्राफ में इस लाइन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप बताएंगे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पोस्ट क्या है और आप वहाँ पर क्या पर्पज़ है, आपका लिखने का क्या पर्पज़ है, यू विल राइट इन अ लाइन। इसका एक और भी जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है। ऑन बिहाफ ऑफ द नेम ऑफ द स्कूल यू हैव टू राइट आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर नेम ऑफ आइटम्स। यू हैव टू राइट The details of the item are needed as follows। फिर आप लिखेंगे कि जो आइटम्स के जो डिटेल हैं वो नीचे लिखे गए हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द थर्ड वन, अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जितने भी आपको पैराग्राफ्स दिए गए हैं इसमें से कोई भी एक आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ है लेटर का, और उसकी ये जो इसके फॉर्मेट दिए गए हैं या इसकी जो लाइंस दी गई हैं, अगर इसी लाइन को आप करेक्ट वे में अपने लेटर में लिखते हैं तो ये काफ़ी इंप्रेसिव होता है। यू मे राइट एनी वन ऑफ देम, कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं। जैसे वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर ऑफर टू सप्लाई, सप्लाई मीन्स द आइटम्स नेम हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय अवर स्कूल मैनेजमेंट। वी आर हियर विथ प्लेसिंग आर फर्स्ट ऑर्डर। तो कभी कभी लेटर में दिया गया था कि आपने पहले इंक्वायरी की है और इंक्वायरी के बाद आप जो है ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए यू कैन यूज़ दिस पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ का यूज़ कर सकते हैं कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म, हमें आपको इन्फॉर्म करके बहुत ही खुशी हो रही है दैट योर ऑफ़र टू सप्लाई, कि आपने जो एक ऑफ़र दिया था आइटम्स को सप्लाई करने का, दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेड हो गया है, उसके लिए परमिशन ग्रांट कर दी गई है फ्रॉम आर स्कूल मैनेजमेंट, हमारे स्कूल मैनेजमेंट से। एंड वी आर हियर विथ प्लेसिंग आर फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे हम अपना पहला ऑर्डर आपको दे रहे हैं। तो यू कैन राइट दिस वन। एंड हियर इज़ वन मोर लेफ्ट। इट इज़ माई प्लेजर टू कम्युनिकेट टू यू दैट आर स्कूल विशेज टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, then you have to name the items. Order for sports item in bulk with your company. These items will be used in the different activities of the school starting from the academic session of the year 2020 to 2021, means of the year 2020 2021. List of the items along with their quantity is given below. So you may write this way। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कोई भी इसमें से एक पैराग्राफ यूज़ करके, जैसे आप कोई भी एक दो लाइन अपने आप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि वी आर होल्डिंग द स्पोर्ट्स फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ एंड वी नीड दीज आइटम्स अर्जेंटली, सो नोट डाउन द फॉलोइंग आइटम्स। तो यू मे कंप्लीट दिस वे। आप उस पैराग्राफ को यहाँ पर यूज़ करके लिख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद आपको तुरंत एक टेबल ड्रॉ करनी है, जहाँ पे वहाँ पे बॉक्स एक ड्रॉ करके आपको वहाँ पे कॉलम ड्रॉ करना है, जिसमें पहले सीरियल नंबर में कितने आइटम्स आप ऑर्डर कर रहे हैं, फिर आपको नेम ऑफ़ द आइटम्स के नेम लिखने हैं, पीसेस कितने पीसेस की नीड है, जैसे आप बैट को ऑर्डर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स आइटम ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे बैट है, बॉल है, स्टम्प्स हैं, तो ये सब जितने भी एसेसरीज़ हैं उसकी वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पीसेस भी लिखना है कि इतने पीस आपको रिक्वायर्ड है। एंड इट इज़ ऑप्शनल टू राइट द नेम ऑफ ब्रांड, और आप उसका नेम ऑफ ब्रांड लिखना चाहते हैं तो इट इज़ ऑप्शनल, क्योंकि जो है ये सब पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ब्रांड का नेम, या जैसे अगर बुक को आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पब्लिशर का नेम लिख सकते हैं। So this way you can complete your first paragraph. Now going to the second paragraph. Second paragraph में कौन कौन सी लाइन का हम यूज़ कर सकते हैं? Look at the second paragraph.
इन द सेकेंड पैराग्राफ वी कैन यूज़ द फॉलोइंग लाइन्स, यहाँ पे हम इन सारी लाइन का यूज़ कर सकते हैं. phrases which can be used in para 2, that is this para includes the detail of payment, discount, boundation for time and safe delivery of products. तो जो पैराग्राफ 2 होता है इसमें हम जो है ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे डिटेल ऑफ पेमेंट, पेमेंट कितना हमें पे कैसे पे करना है, मोड ऑफ पेमेंट वी डिस्कस द मोड ऑफ पेमेंट, डिस्काउंट वी डिस्कस द डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम डिस्कस करते हैं. और उसके बाद जो है बाउंडेशन फॉर टाइम, वहाँ पे हम डिलीवरी टाइम को जो है एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पर द टाइम ऑफ डिलीवरी की किस समय तक जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जानी चाहिए, और उसमें जो है एडवांस पेमेंट होगा या मोड ऑफ पेमेंट क्या है, प्राइजेस क्या क्या होंगे. तो वी डिस्कस ऑल थिंग्स इन द सेकेंड पैराग्राफ. सो लुक एट द लाइन विच यू कैन यूज हियर. वी एक्सपेक्ट अ रीजनेबल डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर एज वी आर ऑर्डरिंग इन बल्क. तो यहाँ पे क्या है कि हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे लिए एक रीजनेबल डिस्काउंट जो है ऑफ़र करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम जो है जो प्रोडक्ट हैं उसको काफ़ी बल्क में, काफ़ी ज़्यादा जो है लार्ज नंबर में हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं. सो वी एक्सपेक्ट द डिस्काउंट. प्लीज़ सेंड योर बिल अलॉन्ग विद द नेम ऑफ आइटम्स. तो जैसे आपने स्पोर्ट्स आइटम आपने ऑर्डर किए हैं, वहाँ पे बैट है, बॉल है, तो जो नंबर ऑफ बैट्स हैं उसकी क्या जो है प्राइजेस हैं, यू हैव टू राइट द बिल. आपको वहाँ पे एक बिल जो है लिख करके उसको जो है डिलीवरी के साथ में देना होगा. द पेमेंट फॉर द अबव आइटम्स विल बी डन और मेड. जो ये पेमेंट होगा इन सब आइटम्स का वो जो है किया जाएगा बाय एन अकाउंट पे चेक, या तो एक अकाउंट पे चेक से, या ऑनलाइन वाया यूपीआई ट्रांसफ़र, या यूपीआई के थ्रू जो है आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. तो जब आप लेटर में लिखेंगे, यहाँ पे तो मैं आपको एक आइडियाज़ देने के लिए मैंने और का यूज़ किया है, बट वाइल राइटिंग यू विल राइट वन थिंग ओनली, दैट आई विल मीन्स द पेमेंट विल बी डन बाई एन अकाउंट पे चेक. तो आप ऐसे ही लिख देंगे, वहाँ पे जो है दो ऑप्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू विल राइट वन मोड ऑफ पेमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द बिल आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर. तो जो भी रिसिप्ट ऑफ द बिल रहेगा, जो भी बिल टोटल अमाउंट रहेगा, उसको रिसीव करने के बाद जो ऑर्डर रिसीव होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको बिल का पेमेंट किया जाएगा. वी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. और वहाँ पे आप ये भी बता देंगे कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होंगे अगर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज़ डैमेज होती है, कोई भी चीज़ मिस होती है, तो विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो हियर यू आर आस्किंग फॉर द सेफ डिलीवरी. आप एक सेफ डिलीवरी के लिए कह रहे हैं कि जिससे वो सुरक्षित हर एक सामान को आप तक डिलीवर करें. सो यू आर रिमाइंडिंग हिम, आप उनको रिमाइंड करा रहे हैं. एंड एट लास्ट यू विल राइट लुकिंग फॉरवर्ड अ फास्ट डिलीवरी फ्रॉम योर एंड. और आप आशा करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी आपके प्रोडक्ट्स को, आपके जो है आइटम्स को जल्दी डिलीवर करेंगे. तो ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ, जो आपको मोस्ट सुटेबल लगे, जो आपको इजी लगे, यू कैन टेक एनी वन ऑफ दैट. आप कोई भी यूज़ करके जो है अपना लेटर लिख सकते हैं. सेकेंड द ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, आप इसको देख सकते हैं. यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबव मेंशन गुड्स, क्योंकि अभी आपने टेबल ड्रॉ की है. अब उसके बाद जो है टेबल ड्रॉ करने के बाद जो आप सेकंड पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपने लिखा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबव मेंशन गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल. तो आपने लिखा कि जो आपको यहाँ पे गुड्स के ऑर्डर दिए गए हैं उसको जल्द से जल्द आपको भेजने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है. पेमेंट शैल बी डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट. जो पेमेंट उसकी होगी वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी एज सून एज वी रिसीव द गुड्स. जैसे ही हम गुड्स को रिसीव करते हैं आपके अकाउंट में पेमेंट डिपॉजिट कर दी जाएगी. वी एक्सपेक्ट दैट यू शैल गिव अस द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट यू यूजुअली गिव टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. हम आशा करते हैं कि आप हमें जो है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेंगे, जैसे कि आप अक्सर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप ऑफर करते हैं, उसी तरह से आप हमें भी डिस्काउंट देंगे. वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. तो इस तरह से आप वहाँ पे लिख सकते हैं. ओके. इन द थर्ड पैराग्राफ, प्लीज एंश्योर प्रॉपर क्वालिटी चेक एंड पैकेजिंग बिफोर डिस्पैचिंग. It will be your responsibility to replace any instruments, items or goods damaged in the transit. तो स्टूडेंट आपको देखिए, अगर आप जो है लैब के लिए लिख रहे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे लिख सकते हैं. अगर स्पोर्ट्स के लिए लिख रहे हैं तो आप आइटम्स लिख सकते हैं या गुड्स लिख सकते हैं. और अगर जो है आप बुक्स के लिए लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स या बुक्स लिख सकते हैं.
तो ये आपको ध्यान रहे कि आप किस तरह के ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्ड्स का ऑप्शन दे करके नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक वर्ड ही लिखना है। जैसे कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो जिनको काफ़ी वर्ड्स का नॉलेज होता है, तो वो बार बार उसका सिनोनिम्स वहाँ पर और करके लिखते रहते हैं, वो बहुत ही इंप्रेसिव नहीं दिखता है, वो काफ़ी ख़राब लगता है दिखने में भी। तो आपको ये अवॉइड करना है। यू डोंट हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बाय यूजिंग और का यूज़ करके बार बार आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन इसलिए दिया है कि आप जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन चेंज योर वर्ड, अपने वर्ड को आप चेंज कर सकते हैं, बाकी आपको इतना ज़्यादा ऑप्शन में लिखने की कोई नीड नहीं होगी। द पेमेंट फॉर द सेम विल बी सेंट बाई मीन्स ऑफ अ चेक आफ्टर वी रिसीव द इनवाइस। इनवाइस मीन्स क्या होता है, वही रिसिप्ट, जो बिल की रिसिप्ट है, जैसे ही हमें वो मिलेगी और आपका पेमेंट जो है चेक के थ्रू आपके बैंक में दे दिया जाएगा। ऑल्सो आफ्टर द बल्क डिस्काउंट गिवन ऑन अ बल्क परचेज, और यहाँ पे एक लास्ट एक्सपेक्टेशन भी है कि जो है जब बल्क मतलब बल्क जो परचेज किया जा रहा है, काफ़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ परचेज की जा रही है, तो वी एक्सपेक्ट द बल्क डिस्काउंट, तो हम आपसे बल्क डिस्काउंट की भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो इस तरह से जो है आपको जो है लेटर का जो लास्ट पार्ट है, आफ्टर ड्राइंग द टेबल, टेबल को ड्रॉ करने के बाद आपको इस तरह से इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करना होगा लेटर में। नाउ विल डिस्कस दैट व्हाट आर द टॉपिक्स फॉर क्वेश्चन। ओके, बिफोर दैट अभी आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, दीज ऑल आर रिटन इन प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट पैसिव में लिखा गया है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, तो कभी भी आपको ये नहीं लिखना है कि सेंड दिस आइटम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कमांडिंग जो है लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। तो यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें काफ़ी पोलाइट वे में हर चीज़ों को बताया गया है, उसको एक्सप्रेस किया गया है। सो नेवर यूज़ द इम्परेटिव सेंटेंसेस इन योर लेटर राइटिंग। कभी भी अपने लेटर राइटिंग में इम्परेटिव मतलब कमांडिंग जो होते हैं, इम्परेटिव में जो कमांडिंग सेंटेंस होते हैं उसका यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है रिक्वेस्ट के वे में, बहुत ही पोलाइट वे में आपको यूज़ करना है, दैट यू आर रिक्वेस्टेड दिस वे, ओके, एंड यू हैव टू यूज़ द प्रेजेंट टेंस, आपको प्रेजेंट टेंस का ही वहाँ पर यूज़ करना है। नाउ लुक एट द टॉपिक्स फॉर द क्वेश्चन, कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वहाँ पर आते हैं। तो टॉपिक्स में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। क्या क्या है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। हम जो है जो टॉपिक दिए जाते हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स आइटम के लिए हम ऑर्डर वहाँ पे लेटर लिखते हैं। लैब अपरेटस फॉर साइंस लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी के लिए लैब अपरेटस जो होते हैं इक्विपमेंट्स, उसके लिए लिखते हैं। कंप्यूटर लैब के लिए लिखते हैं। बुक्स एंड स्टेशनरी फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए बुक्स और स्टेशनरी के लिए लिखते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर। और अदर एक्टिविटीज़ एंड यूनिफॉर्म्स फॉर ड्रेस स्टोर ऑफ स्कूल, या कभी कभी यूनिफॉर्म्स के लिए भी जो है हम जो है बिजनेस लेटर लिखते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखते हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कभी कभी जो हम पर्सनली जब हम लिखते हैं तो वी राइट प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सम ईटेबल्स थिंग्स और डेली कमोडिटीज एक्सेट्रा फॉर पर्सनल यूज। तो अपने पर्सनल यूज के लिए भी हम जो है इस तरह से लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर को लिखते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर वाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको क्या मतलब लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है, उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। द नेम ऑफ सिटी और प्लेस कैन बी वेरीड इन द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। वाइल टेलिंग द फॉर्मेट ऑफ लेटर, जब मैं आपको फॉर्मेट ऑफ लेटर बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि हियर वी कैन राइट द सिटी और प्लेस नेम। यहाँ पे हम जो है नेम ऑफ सिटी और प्लेस को जो है अलग अलग लिख सकते हैं इन द एड्रेस ऑफ सेंडर और रिसीवर। Second point, we can write the sales manager, the managing director or the firm. Means it is the managing director written in the case of firm. जब firm कोई हो, कोई firm को आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे। And the proprietor at the post of receiver, because sometimes it is not given in the question, followed by the name of firm or company or shop. You may write only the name of firm, company or shop either. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कभी कभी आपको पोस्ट लिखना होता है, एक जो रिसीवर एड्रेस का जो एक फॉर्मेट है वहाँ पे पोस्ट या डेजिग्नेशन पहले लिखना चाहिए, फिर नेम ऑफ कंपनी वो लिखना चाहिए, फिर आपको प्लेस नेम लिखना चाहिए। इन 3 लाइन दिस शुड बी रिटन।
अगर आपको कभी ये क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पर पोस्ट या डेजिग्नेशन क्या लिखें, तो यू शुड नेम द कंपनी, जो वहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है क्वेश्चन में, आप उतने ही मेंशन कर दीजिए विद द एड्रेस, दैट इज ऑल्सो ओके, वो भी सही है। तो अगर आपको मालूम है देन यू कैन राइट, इफ यू आर नॉट एक्वेंटेड विद दैट यू कैन राइट ओनली द नेम ऑफ कंपनी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीवर एड्रेस। थर्ड पॉइंट, द लेटर शुड हैव ऑल रेलिवेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द ऑर्डर। लेटर जो आप लिख रहे हैं उसमें सारे रेलिवेंट डिटेल्स होने चाहिए रिलेटेड टू द ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड सारे डिटेल्स होने चाहिए, जैसे फॉर इंस्टेंस क्वांटिटी, द डेट एंड मोड ऑफ डिलीवरी, किस दिन जो है आपको डेट आपको ध्यान देना ही है कि जब आप लेटर को लिख रहे हैं उससे और जो आप डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कुछ न कुछ वेरिएशन होना चाहिए 1 से 2 वीक का, और वो क्या होगा, लेटर फर्दर डेट्स रहेंगी। सपोज यू आर राइटिंग ऑन फर्स्ट, देन यू हैव टू एक्सपेक्ट द डिलीवरी ऑन 12th और 14th, और आप फर्स्ट को कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप 12th या 14th को एक्सपेक्ट करिए डिलीवरी को, तो अप्रॉक्स मतलब 1 to 2 वीक्स जो है आप वहाँ पे टाइम एक्सपेक्ट करिए। सो यू हैव टू राइट द डेट एंड मोड ऑफ डिलीवरी एंड अदर द टर्म्स एंड कंडीशन, और जो टर्म्स और कंडीशन दूसरे हैं जैसे डिस्काउंट, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब जितने भी हैं इन सबको भी आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज कंक्लूड पोलाइटली आस्किंग फॉर अ प्रॉम्प्ट एंड सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। और लास्ट में जो क्लोजिंग लाइन है जहाँ पे आप लेटर को इंक्लूड करेंगे वहाँ पे आपको इंक्लूड करते उसको कंक्लूजन उसका करते समय यू हैव टू आस्क पोलाइटली फॉर अ प्रॉम्प्ट एंड सेफ डिलीवरी। एक प्रॉम्प्ट और सेफ डिलीवरी के लिए यू हैव टू रिक्वेस्ट, आपको वहाँ पे रिक्वेस्ट करना है। So this was all about the points which you have to remember while writing the letter of placing an order. One thing which I had told you regarding the tense, मैंने tense के regarding आपको बताया है कि आपको order वाले sentence का use नहीं करना है कि send these items as soon as possible, okay, no damage should be done. So इस तरह से जो है आपको sentence का use नहीं करना है। You have to be very polite while writing the letter of placing an order. The next letter is letter to complaint. जैसे बिजनेस लेटर मैंने आपको बताया था कि प्लेसिंग एन ऑर्डर है और दूसरा उसका क्या है, लेटर टू कंप्लेंट। सो लेट्स नो दैट व्हाट इज लेटर टू कंप्लेंट। अ कंप्लेंट लेटर इज अ टाइप ऑफ लेटर टू एड्रेस एनी टाइप ऑफ रॉन्ग फंक्शनिंग और डिफेक्टिव पैकिंग, grievances, etc. to the concerned authorities. It is essential to describe your problem or problems elaborately. तो लेटर टू कंप्लेंट क्या होता है कि ये एक तरह का कंप्लेंट लेटर होता है, एक शिकायती पत्र होता है जिसमें हम लेटर को लिखते हैं, लेटर को एड्रेस करते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि जो भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर में प्लेस किया है उसमें जो है हमें डिफेक्टिव, वी हैव रिसीव्ड द डिफेक्टिव आइटम्स, हमने डिफेक्टिव आइटम्स रिसीव किए हैं। अपने ग्रीवेंसेस, जो हमारे रिसेंटमेंट होता है, जो हमारी नाराज़गी होती है, अपनी नाराज़गी को हम एक्सप्रेस करते हैं। ये रॉन्ग फंक्शनिंग, अगर कोई जो है उसने कोई भी आइटम डिलीवर किया गया है और अभी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो आउट ऑफ ऑर्डर है, दैट इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है, सो वी राइट द लेटर टू कंप्लेंट, तब हम एक शिकायती पत्र वहाँ पर लिखते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम्स एलोबरेटली, और इस तरह के लेटर में हमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम हमने फेस किया है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, वी हैव टू एलोबरेट आवर प्रॉब्लम मीन्स इन अ डिटेल, हमें जो अपनी प्रॉब्लम को एक डिटेल में एलोबरेट करना है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्लेंट लेटर, और यहाँ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्लेंट लेटर क्या है। जैसे फर्स्ट आपका है पर्सनल कंप्लेंट लेटर। यहाँ पे आप पर्सनल कंप्लेंट लेटर लिखते हैं जब क्या होता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है और आपने उसे पर्सनल यूज़ के लिए जो है अपने ऑर्डर को ही दिया है, एंड यू फाउंड द डिफेक्टिव परचेज एंड यू हैव फाउंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज, देन यू विल राइट द लेटर टू कंप्लेंट पर्सनली, तब आप पर्सनली जो है वहाँ पर लेटर टू कंप्लेंट लिखेंगे। बिजनेस लेटर ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पे बिजनेस लेटर ऑफ कंप्लेंट में क्या होगा कि सपोज यू आर रनिंग विद अ बिजनेस, आप जो है कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई कंपनी है, आपकी फर्म है, आपने किसी दूसरी कंपनी से ऑर्डर किया है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉल्टी सर्विस जो है आपको मिली, अनफेयर डील हुई,
सो यू विल राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। सपोज आप जो है किसी कंपनी के जो है आप डायरेक्टर हैं और आपने कहीं मीटिंग होल्ड की है किसी होटल में, और वहाँ पे होटल की सर्विस बहुत ही पुअर थी, दे हैड नॉट वर्कड एज पर योर इंस्ट्रक्शन, सो यू विल राइट अ कंप्लेंट लेटर। तब वहाँ पे आप कंप्लेंट लेटर लिखेंगे रिगार्डिंग द सर्विस, एक फॉल्टी सर्विस के लिए। तो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं दैट्स अ बिजनेस लेटर ऑफ कंप्लेंट। एंड द थर्ड वन इज ऑफिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट, जहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पर्सन, जैसे क्या होता है कि लाइब्रेरियन है और आपके जो है स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर हुए, तो ये जो है ऑफिशियली ये लोग लेटर लिखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द स्कूल, स्कूल के बिहाफ पर ये लोग लेटर लिखते हैं। एंड व्हेन दे रिसीव्ड अ प्रॉब्लम, जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सर्विस में डिफॉल्ट होता है या कोई जो है प्रोडक्ट डिफेक्टिव जो है उनको मिलते हैं, देन दे राइट द ऑफिशियल लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो एक नाउ स्टूडेंट विल लुक इनटू द पॉइंट्स दैट शुड बी remembered while writing a letter of complaint. The point 1 is given that means you have to write the subject briefly in 3 to 4 words. आपको जो है briefly 3 to 4 words में आपको लिखना है। It should be clear and specific, और जो आपका subject हो वो बहुत ही clear और बहुत ही specific होना चाहिए। Like you can write complaint against this, complaint regarding this. You have to write the item's name. Complaint against the defective items, the defective sports item, complaint regarding the change of product. Okay, so you may write this way: received damaged goods, sports equipments. Okay, this way you can write the subject. So and these are the following lines which should be used while writing the content. और यहाँ पे कुछ lines दी गई, जैसे मैंने आपको placing and order में आपको बताया था कि what are the lines which can be used in paragraph 1, 2 and 3. In the same way I had told you in letter of complaint also. So in paragraph 1 you can start with your para 1 with these lines, like the first is given here: I am writing to inform you of my dissatisfaction with. So you can write the dissatisfaction, आपको किस चीज़ से असंतोष हुआ है, आप किस लिए नाराज हैं, you may write there. Okay, you will write your resentment, आप वहाँ पे अपना resentment लिखेंगे कि आप किस लिए जो है you are dissatisfied. You may also start with this line: I have been a faithful client with your company for 2 years and have enjoyed quality of service. However, I received this defective items which I had ordered. You may mention the date. Okay, तो इस तरह से आप वहाँ इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं. You can use this line: this is to inform you that we had ordered the name of items from your showroom, wide bill number 54321 on, you have to mention the date. Okay, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि जैसे डेट जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं उसके प्रायर, उसके पहले की डेट आपको मेंशन करना है. सपोज यू आर राइटिंग ऑन 12, देन यू हैव टू मेंशन 5 और 6 दैट यू हैव ऑर्डर्ड ऑन 5th और 6th. सो यू विल राइट द मीन्स प्रीवियस डेट, आपको वहाँ पे प्रीवियस डेट का यूज़ करना है. तो ये वेरिएशन आपको ध्यान देना है लिखते समय. यू मे यूज़ दिस लाइन ऑल्सो: आई एम द ओनर और लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट और स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर. यू मे राइट एनी ऑफ द पोस्ट, कोई भी पोस्ट लिख सकते हैं आप. ऑफ, यू हैव टू राइट द स्कूल नेम ऑफ XYZ स्कूल. इन, देन यू हैव टू राइट द प्लेस नेम, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सिटी. वी हैव रिसीव्ड अ सप्लाई ऑफ, you have to write the name of product from your end on, then you have to write the date. Against our invoice number, then you can write any invoice number, any receipt number. वहाँ पे आप कोई भी जो है random 5 digit number वहाँ पे आप mention कर सकते हैं. 54321 64536 है ना, कुछ इस तरह से आप 6 digit के नंबर वहाँ पे random आप mention कर सकते हैं. So it is also a kind of format, ये एक format है. और भी यहाँ पे लाइन्स दी गई, जैसे थ्रू द मीडियम ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस बाय कंप्लेंट ऑफ, वहाँ पे जो कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. ओके, यू मे राइट कंप्लेंट ऑफ लॉस्ट आइटम्स. ओके, यू मे राइट दिस वे. एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस लाइन: टू माई डिसमे
ओके, डिसमे मीन्स क्या होता है, सरप्राइज, आई हैव नॉट रिसीव द प्रोडक्ट व्हाट आई हैड ऑर्डर्ड। ओके, तो जैसे क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट आपने वहाँ पे प्लेसिंग एन ऑर्डर में लिखा था, बट यू हैव फाउंड अ डिफरेंट प्रोडक्ट, you have got the change of product, so you will write this way. Okay, and for household items, जैसे कोई आपने household items ऑर्डर किया है, you can write this way, I purchased the latest model of microwave, मॉडल नंबर, वहाँ पे आप जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मॉडल नंबर लिख सकते हैं, और फिर उसका जो है कैश मेमो नंबर तो आप मेंशन कर ही रहे हैं हर एक उसमें जो है जो टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, so you may write this way. So these are the ways to write the first paragraph and you may use any of these lines, कोई भी इन सब लाइन्स का आप यूज़ करके फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पे एक अपना लाइट इंट्रोडक्शन, एक जो है 1-2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन, देन मीन्स व्हाट इज़ द रिसेंटमेंट, आपको आप क्यों डिससेटिस्फाइड है, वाई यू आर राइटिंग द लेटर, यू हैव टू मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, आपको वो पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है दैट वाई यू आर डिससेटिस्फाइड with the service, you have to write the purpose. Now you will elaborate your problem, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं you have to elaborate in paragraph 2. अब आपको जो है describe the condition of the product in detail. अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जो कंडीशन है उसको डिटेल में जो है पैराग्राफ 2 में बताना है। यू हैव टू टेल अबाउट योर रिसेंटमेंट, आप क्यों नाराज हैं, वाई यू आर डिससेटिस्फाइड एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड देयर, यू विल मेंशन इन सेकेंड पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ लाइन दी गई, इससे मैंने जी में यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जी में मैंने जो है इट इज़ फॉर हाउस होल्ड आइटम्स, कोई हाउस होल्ड आइटम्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखा है। तो आप सेकेंड पैराग्राफ में अगर आपने जी वाला मेंशन किया है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए लेटर लिख रहे हैं तो उसका सेकेंड पैराग्राफ आप ये लाइन यूज कर सकते हैं कि विद अ फ्यू डेज ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द माइक्रोवेव स्टार्टेड शोइंग प्रॉब्लम। इट मीन्स क्या हो कि जब आपने माइक्रोवेव परचेज किया और उसको इंस्टॉल किया गया, उसको लगाया गया घर में, तो उसके कुछ ही दिन बाद से उसमें प्रॉब्लम आने लगी। द डिवाइस इज नॉट गेटिंग हीटेड एंड सो फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन है तो ओवन अगर वो जो है हीट नहीं हो रहा है तो उसमें फूड जो है कोई अच्छे से प्रॉपर तरीके से कुक नहीं होंगे। तो दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ योर शॉप, तो आपने अपना रिसेंटमेंट, अपनी नाराज़गी दिखाई बाय राइटिंग दिस लाइन दैट दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ योर शॉप, कि आपके शॉप के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इन द मीन्स ऑप्शनल की और जो लाइन है वहाँ पे बी में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट विद इन अ मंथ ऑफ बाइंग इट्स परचेज वी हैव स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम like its cooling has stopped and it makes a lot of noise. You can write for air conditioner के आप रेफरेंस में लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के रेफरेंस में इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि दैट विद इन अ मंथ, कि एक महीने के अंदर ही ऑफ बाइंग ऑफ इट्स परचेज, खरीदने के एक महीने के अंदर ही वी हैव स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे इसकी कूलिंग जो है रुक चुकी है, कूल नहीं करती है, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़, और जब ये जो है यूज़ किया जाता है तो इट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज़, इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा इसमें आवाज़ होती है। तो यू कैन राइट दिस प्रॉब्लम दिस वे। देयर इज अ वन मोर लाइन, एक यहाँ पे और दी गई है, टू माई डिसमे व्हेन द कंसाइनमेंट वाज ओपेंड आई फाउंड दैट द कंटेंट्स डिड नॉट टैली विद व्हाट हैड बीन ऑर्डर्ड। जैसे आपको लेटर कोई दिया गया है जहाँ पे आपको ये लिखना है कि कोई जो है गैजेट्स चेंज कर दिए गए हैं, जो आपने ऑर्डर किया वो आपको वो गैजेट्स नहीं मिले, वो सारे जो है इक्विपमेंट्स नहीं मिले, कोई दूसरे चेंज करके आपको मिल चुके हैं, तो आप इसको इस ढंग से लिखेंगे कि टू माई डिसमे व्हेन द कंसाइनमेंट वाज ओपन, जब ऑर्डर को ओपन किया गया, आई फाउंड दैट द कंटेंट्स डिड नॉट टैली, तो वो जो कंटेंट थे जो मैंने ऑर्डर किए थे बिल्कुल भी टैली नहीं कर रहे थे, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे what had been ordered। तो वो मिसमैच, अगर कोई भी प्रोडक्ट मिसमैच करता है देन यू कैन यूज दिस लाइन, द ऑर्डर वॉज फॉर XYZ, देन यू विल राइट द ब्रांड नेम, आप वहाँ ब्रांड का नेम लिखेंगे, यू मे राइट नेम ऑफ प्रोडक्ट, वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, और देन यू विल राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच यू हैव रिसीव्ड। तो जैसे आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया बट यू हैव रिसीव्ड एंड मीन्स समथिंग एल्स, कोई आपने दूसरा रिसीव किया है, तो वहाँ पे जो है you may write both the brands name, both the items name, दोनों आइटम्स का नेम या ब्रांड का नेम वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं।
So this is the way of writing while writing the paragraph 2. Paragraph 2 लिखते समय हम इनमें से कोई भी पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं. These are the lines which you have to mention. Now look at the third paragraph. For third paragraph you have to remember the points. आपको कुछ points याद रखने हैं. You have to request for service. आपको जो है third paragraph में you have to request for service or repair, or you may write also for refund. If there is warranty, अगर वहाँ पे वारंटी या गारंटी है प्रोडक्ट की, then you can ask for replacement. तो आप रिप्लेसमेंट के लिए भी वहाँ पे लिख सकते हैं. You can use the following lines. आप इन सारी लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक. So I or we request you to replace the item as soon as possible so that no further inconvenience is caused, keeping in mind the reputation of your shop और योर शोरूम, कंपनी और फर्म. ठीक है ना, आप इस तरह से लिख सकते हैं. थर्ड पैराग्राफ में यू हैव टू रिक्वेस्ट. आपको रिक्वेस्ट करना है फॉर द सर्विस और फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ दैट. आप रिपेयर करने के लिए, रिफंड करने के लिए, मनी रिफंड करने के लिए. अगर वहाँ पे वारंटी या गारंटी है तो आप वहाँ पर उसको रिप्लेस करने की भी डिमांड कर सकते हैं. सो यू कैन यूज़ दिस वे, यू कैन राइट दिस वे, और यू कैन राइट द अदर लाइन लाइक आई हियर बाई रिक्वेस्ट यू टू इधर इंश्योर दैट दीज डिफेक्ट्स विल बी रिपेयर्ड or replaced with new one as it is in guarantee period. This way you can write the name of shops ki XYZ, the shop's name enjoys a good reputation in the market. Market में इसकी एक अलग पहचान है. It has a means unique identity in the market. So I expect you to attend to my complaint at the earliest so that I am not further inconvenienced. So you can use this line. Okay. In paragraph 4 it is a complimentary clause, and if you wish you can attach the cash memo. आप वहाँ पे cash memo या warranty card जो भी होता है आप वहाँ पे attach कर सकते हैं. तो while writing the complimentary clause you may write enclosure. वहाँ पे enclosure आप वहाँ enclosure करके, जैसे अगर अपने cash memo आप उस letter के साथ में attach कर रहे हैं then you may write there enclosure. तो वो attachment को भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं. एंड देन द फॉलोड बाई सब्सक्रिप्शन. फिर आपको सब्सक्रिप्शन यूज़ करना है. योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, एंड नेम विद द डेजिग्नेशन और द मीन्स इफ यू आर द लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर देन you will write your designation with your name. Okay, so here you will write in fourth paragraph, do not use means you have to write the complementary clause this way. Okay, so you will write that I request you to take the action at the earliest. Okay, with that you will complete this paragraph 4 and you will write thanking you, okay, for your anticipation. Then the next point is here which you have to keep in mind, जो आपको ध्यान देना है कि you don't have to use insulting, rude और aggressive language. आपको जो है कंप्लेन लेटर लिखते समय आपको इंसल्टिंग या रूड या एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है. यू हैव टू बी पोलाइट वाइल राइटिंग योर प्रॉब्लम. और अपनी प्रॉब्लम को बताते समय यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू डोंट हैव टू थ्रेट टू गो टू पुलिस और कोर्ट. वहाँ पे आपको पुलिस या कोर्ट की धमकी नहीं देनी है. द फोर्थ वन, सब्सिक्वेंट डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ परचेज एंड दैट ऑफ कंप्लेंट. मैंने आपको बताया ही कि जिस दिन आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वो तो एग्जामिनेशन की डेट होगी जिस दिन आप एग्ज़ाम जो है दे रहे होंगे, और जो आपने लेटर ऑफ जो डेट होगी, रिसीविंग डेट जो होगी वो क्या होगी, उसमें डिफरेंस होना चाहिए. वो पहले की डेट होगी, जो जिस दिन आप लिख रहे हैं उसके पहले की डेट होगी, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट है उसको कुछ समय पहले रिसीव किया है. अब उसकी कंप्लेंट जो है आप कुछ समय के बाद लिख रहे हैं. व्हेन यू हैव ऑब्जर्व्ड, जब आपने ऑब्जर्व किया और आपने पाया तब जो है आप उसको मेंशन कर रहे हैं. यू आर राइटिंग द कंप्लेन लेटर लेटर ऑन आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट. तो देयर मस्ट बी द सब्सिक्वेंट डिफरेंस बिटवीन द डेट. तो जो डेट है, डेट ऑफ परचेजिंग और डेट ऑफ कंप्लेंट, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए. द फिफ्थ पॉइंट इज हियर, यू हैव टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज. You don't have to use contraction or the short form or abbreviation form of that, like I'm, don't, symbol of and, TV, etc. इन सब का यूज़ आपको नहीं करना है. It should be written I am, do not, and, TV, that means television. So you have to write the full form of the word. You don't have to use any contraction or the short forms of the word. At last, subscription.
You should write yours faithfully. Many of the student while writing the subscription they do a error, वे गलती करते हैं वहाँ पर कि वो क्या लिखते हैं, your apostrophe s कर देते हैं. That's a wrong way of writing the subscription. सब्सक्रिप्शन लिखने का वो एक गलत तरीका है. आपको लिखना चाहिए yours, yours, और yours में सिर्फ y ही कैपिटल होता है. faithfully या truly इन दोनों वर्ड्स के जो लेटर होते हैं वो पूरे पूरे स्मॉल लेटर में लिखे गए होते हैं, लोअर केस में लिखे जाते हैं. तो yours faithfully और yours truly. इफ़ यू एड्रेस द रिसीवर एज सर और मैडम, जब आप क्या होते हैं कि रिसीवर को एज अ सर या मैडम जो है आप एड्रेस करते हैं, उसका सैल्यूटेशन जो ओपनिंग सैल्यूटेशन होता है सर या मैडम होता है या डियर सर और मैडम होता है, तब आप जो है वहाँ पर योर्स फेथफुली और ट्रूली लिखते हैं. और योर्स सिंसियरली तब लिखा जाता है जब आप वहाँ पे ओपनिंग सैल्यूटेशन में उसका नाम लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल दिया गया कि मिस्टर आकाश और मिस अंकिता. इफ़ यू आर राइटिंग दिस वे then you have to write your sincerely. So you have to keep in mind while writing the subscription, okay, you have to use these lines. Student, we have discussed about the format of letter and the headings and the paragraphs line which are very effective. We have used that. Now we are going to look at the solved example of complaint letter. Now have a look on the sender address एज इट इज़ गिवन हाउस नंबर 187. कभी कभी जो है क्वेश्चन में ये बेटा नहीं दिया गया होता है कि हाउस नंबर क्या है. यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, आपको वहाँ सेल्फ क्रिएट करना होता है. यू मे राइट हाउस नंबर योर सेल्फ. देन यू हैव टू राइट द प्लेस नेम, द स्ट्रीट नेम, जो नेम ऑफ स्ट्रीट है यू हैव टू राइट इन द सेकेंड लाइन, रोहिणी सेक्टर 50. देन यू हैव टू नेम ऑफ द सिटी, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ सिटी, न्यू दिल्ली. Here the date is written in a wrong way. डेट जो मेंशन की गई वो गलत तरीका है. यहाँ पे थर्ड लिख दिया गया है. RD is written although it is incorrect. ये गलत है. You should write 3 January and the month name should be written in full word. जो उसका full word है Jan, Feb, ये हमें abbreviation form का यूज नहीं करना चाहिए. We have to write in full word. इसका जो full word है January, JANUARY पूरा लिखा होना चाहिए. Then you have to use comma. Then you have to write the year in figure. फिर आपको year को जो है figure में लिखना है. Then you have to leave a line. Here you can write Messrs. हाँ, Messrs also can be used. जैसे M/small s, so it is Messrs. RK Electronics. In the second line you will write the house number, that is 135. Then industrial area, the name of a street, then New Delhi. Okay, this is all about the receiver address. According to the new format, you can write dear sir or ma'am. Then you should write a subject, but here given the subject first, यहाँ पे subject पहले दिया गया है. It is also correct, ये भी सही है. Marks is not deducted on this. Marks deduct नहीं होता है वैसे, लेकिन जो correct latest format है वहाँ पे salutation पहले लिखा होना चाहिए. So you will write first dear sir or ma'am. Then subject, that regarding or complaining the defective items, या received defective items. Here the means content is given. I would like to draw your kind attention towards the purchase of. Then you have to write the name of product and the model number. Okay, so यहाँ पे क्या होता है कि वो लिखता है I would like to draw your attention towards the purchase of, then the product name and the model number. From your shop or showroom, wide, you can write wide cash memo or against cash memo number 5337, dated. Again you have to write 12, not th. You don't have to use th or rd. Okay, nd, these words, these slangs should not be used there. You should write only 12 December 2018. So here you have found that date which was mentioned here, it was 3rd January. It was 3 January, but here you have to write 12th December. मतलब क्या है कि ये अर्लियर डेट है, पहले की डेट है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आपने ऑर्डर रिसीव किया तो उसकी क्या डेट थी, आपको वो डेट मेंशन करना है. और जिस दिन आप डेट लिख रहे हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट, दोनों में वेरिएशन होना चाहिए. इन द नेम ऑफ XYZ अपना नाम वहाँ पे आप लिख सकते हैं. यू प्रेज्ड इट्स क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग. और यहाँ पे फिर लिखा गया कि आपने तो इसकी जो है इसकी क्वालिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी,
इसकी फंक्शनिंग की आपने बहुत ही प्रेज़ की थी। यू सप्लाइड मी विद अ गारंटी, वारंटी कार्ड, आपने वहाँ पे मुझे गारंटी या वारंटी कार्ड भी दिया था फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, आपने 1 ईयर का जो है एक वारंटी पीरियड कार्ड भी दिया था। इन एनी केस काइंड ऑफ और इन एनी केस और इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी अराइजेज इन ड्यू कोर्स, अगर 1 ईयर या जो है 6 मंथ्स की जो है अगर वारंटी अगर वहाँ पे है तो इस दौरान, इन ड्यू कोर्स में क्या होता है, इस दौरान अगर कोई भी डिफ़िकल्टी वहाँ पे क्रिएट होती है या कोई डिफ़िकल्टी होती है, सो आई मे कंप्लेन अगेंस्ट दैट, मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द वारंटी कार्ड। इट्स फंक्शनिंग रिमेन्ड क्वाइट praiseworthy, but after few months or weeks it creates unpleasant loud noise as and when the switch on। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो इसकी फंक्शनिंग थी वो कुछ हफ्तों या कुछ महीने बहुत अच्छी से हुई इसकी फंक्शनिंग, इसने बहुत अच्छे से वर्क किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद इट स्टार्टेड क्रिएटिंग अनप्लीजेंट लाउड नॉइज, इसमें जो है बहुत ही अनप्लीजेंट सी आवाज़ होने लगी जैसे इसका स्विच ऑन किया जाता है। और यू कैन मेंशन एनी मोर प्रॉब्लम्स, यहाँ पे और भी कोई प्रॉब्लम्स आप मेंशन कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग, आप वहाँ पे और भी जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ यू हैव एनी। देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल राइट, यू नो दैट द प्रोडक्ट नेम यू हैव टू राइट, इट इज़ अ डोमेस्टिक नेसेसिटी, ये बहुत ही ज़रूरत का मतलब एक प्रोडक्ट है, एंड वन कैन नॉट रिमेन विदाउट इट, और कोई भी जो है इसके बिना जो है काम नहीं कर सकता है। सो प्लीज़ आस्क योर मैकेनिक और इंजीनियर टू विजिट माई हाउस एज अर्ली एज पॉसिबल, तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप इंजीनियर या जो है मैकेनिक को जो है मेरे घर पे जो है वो जितनी जल्दी विजिट कर सकते हैं वो रिपेयर करने के लिए आ जाएं। आई होप दैट माई कंप्लेंट विल बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सो दैट माई डोमेस्टिक लाइफ मे नॉट कम इन एनी ट्रबल। और फिर यहाँ पे जो आप लाइन कंक्लूड करेंगे वहाँ पे आप लिखेंगे कि आशा करता हूँ कि मेरी जो कंप्लेन है उसको आप प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि जो है जिससे मेरी डोमेस्टिक लाइफ उसमें ट्रबल ना क्रिएट हो, उसमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो, तो आप बहुत ही जल्दी अपने मैकेनिक या इंजीनियर को भेजेंगे। योर क्विक रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, अगर आपने एक्शन जल्दी लिया है तो डेफिनेटली दैट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। तो दिस वे we will include the letter. While writing the student, you have to just keep in mind that this one, the date here which is mentioned, it is incorrect. You don't have to write this date, and you have to write the subject before you have to write the opening salutation before the subject. These two things you have to keep in mind. These two things are wrong here. ये दो चीज़ें गलत हैं और इसको आप लिखते समय जो है ध्यान देंगे। After that you will write thanking you and yours faithfully this way. यहाँ पे जो यूज़ किया गया yours faithfully, it is correct. And if you are not acquainted with the name of writer, अगर आप राइटर के नेम से acquainted नहीं है, राइटर मीन्स जो सेंडर है, then you can write any XYZ नेम, यहाँ पे आप कोई भी XYZ का नेम लिख सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको इस बात का ध्यान देना है। इट वॉज ऑल अबाउट द कंप्लेंट लेटर, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे बता दिया है। दिस वे वी हैड फिनिश्ड द बिजनेस लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड कंप्लेंट लेटर। यहाँ पे हम दोनों को जो है आपको